Hello and welcome, my dear friends. Today we will be talking about classification based on synthesis. In previous videos, we talked about the classification of polymers on the basis of origin, on the basis of structure, and then we switched on to intermolecular forces. This is the fourth type of classification, which is based on synthesis of these polymers. And now, according to synthesis, we have two main types. Number one is addition polymers. Addition polymer. We can also say chain growth polymer. Chain growth polymer. And number second is the condensation polymerization, or we can say condensation polymer, or step growth polymer. We shall be talking about in this video only the addition polymer, or we can say chain growth polymer. We'll be talking about this later on, hopefully in the next video, once we finish addition polymers. So what these addition polymers are, these are basically polymers formed by the repeated addition of monomeric units these monomeric units must contain double or triple bonds. So मोनोमेरिक यूनिट्स अगर उनमें होंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब अनसैचुरेशन होगा, उनको रिपीटेड एडिशन हो जाना, द पॉलीमर फॉर्मड इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर और चेन ग्रोथ पॉलीमर. सो चेन ग्रोथ पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर वो वाले पॉलीमर्स हुआ करते हैं जो बनते हैं बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, एंड दीज मोनोमेरिक यूनिट्स मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब अनसैचुरेशन. चूंकि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, and the process of polymerization is called addition polymerization. We can write here process of polymerization is addition polymerization, or we can say chain growth polymerization. Since this is an addition polymer, so there is no elimination of any molecule. So there is no elimination of any small molecule. इसमें कोई एलिमिनेट मॉलिक्यूल नहीं होता है. इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ मोनोमेरिक यूनिट. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज द मल्टीपल ऑफ मोनोमेरिक यूनिट. And next point is that these polymers are usually initiated by, or they are catalyzed or initiated by free radicals, acids, Lewis acids or bases. So this is what is called as addition polymer or chain growth polymer. So इस chain growth polymer में या addition polymer है कोई molecule eliminate नहीं होता, because this is an addition type of thing. And monomeric unit का mass क्या होगा, उसको हम multiply करेंगे कितने monomeric units combine हुए हैं, that will give you the molecular mass of that compound, that polymer. और ये जो polymerization है, addition polymerization, ये usually catalyze होती है या initiate होती है by free radicals, या लेविस एसिड से या लेविस बेसिस से. नाउ कैसे, लेट्स हैव एन एग्जांपल. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथीन. ये जब पॉलीमराइज होता है तो ये बनता है पॉलीथीन. करना क्या है, ये डबल बॉन्ड को हटाना है, इसकी जगह यहां पे एक सिंगल बॉन्ड डालना है, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड डालना है, ऐसे फिर होल एन करना है. दिस गिव्स इट अ पॉलीमर, दैट इज पॉलीथीन.
दिस इज ईथीन एंड दिस इज पॉलीथीन। अब ये कैसे बना, ये पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस? Before talking about several these polymers, I must tell you what is the mechanism of this polymerization. So there are two ways, or we can say there are two mechanisms possible for this polymerization. Number one is free radical mechanism. अगर हम radicals इस्तेमाल करेंगे, अगर हम initiate कराएंगे reaction with Lewis acids या bases से, तब जो है the mechanism will be a polar mechanism. So there are two mechanisms possible for the addition polymerization. One is radical, next is ionic. So we have mechanisms of polymerization. So mechanism of addition polymerization. Number one हम लेंगे free radical mechanism. Free radical mechanism में क्या है? आपको radical generate होते हैं. Polymerization is initiated by radicals. अब radical कहां से बनेंगे? From by heating या by light or by heating using peroxides or by peroxides. For example, आपके पास है एक peroxide R, C double bond O, O, C double bond O. दिस इज द पेरोक्साइड लिंक ओवर हेयर। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। सो वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, दिस विल बी 2 टाइम्स। उसके बाद क्या होगा फिर, ये यहाँ पे बनेगा आर रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, CO2 रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो आर रेडिकल बनेगा। दिस आर रेडिकल देन is used to propagate the chain. So radicals are formed by heat or from direct peroxides या by light. अगर आपके पास सपोज होगा डायरेक्टली CCl बॉन्ड, तब आपने इसको हीट किया या लाइट डाल दी तो क्या हुआ, ये Cl2 टाइम्स रेडिकल बनेंगी. So radicals are formed by different reagents or from peroxides. So peroxides are the main categories which gives you radicals. Now इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अब कितने स्टेप्स इन्वॉल्वड है? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड. नंबर 1 इज चेन इनिशिएशन स्टेप. सो देयर आर 3 स्टेप्स इन इट. ये मैंने पहले दिखाया था आपको कि रेडिकल्स कैसे बनते हैं. आई शोड यू हाउ रेडिकल्स आर फॉर्म्ड. यहां रेडिकल्स कैसे बनते हैं, हीट कर पेरोक्साइड को हीट करना. पेरोक्साइड्स आर द कंपाउंड्स हैविंग OO डायरेक्ट लिंक, दैट्स कॉल्ड पेरोक्साइड. तो अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है तब भी वो ब्रेक हो जाएगा तो HO रेडिकल बनेगा. So this is how it occurs. And now how many steps are involved in this free radical mechanism is 3 steps involved है हमारे पास. Number 1 is chain initiation step. Chain initiation step. Chain initiate कौन करता है? रेडिकल्स. रेडिकल कैसे बनते हैं? सपोज आपके पास है बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड वो ये है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड. हीट करने से आपका जो है यहां से ये ब्रेक हो जाएगा तो ये एक रेडिकल बनेगा, ये एक रेडिकल बनेगा. सो वी हैव दिस O रेडिकल, दिस विल बी 2 टाइम्स. फिर यहाँ पे जो है आपका ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा एंड दिस विल गो हियर. तो यहाँ पे एक बेंजोइल रेडिकल बनेगा, ठीक, प्लस CO2. एंड दिस बेंजोइल रेडिकल जो है ये आप चेन को इनिशिएट करेगा. कैसे? आपके पास ऐसे है एक रेडिकल यहाँ, तो ये इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. सपोज इथीन इज द मोनोमेरिक यूनिट, इथीन. अब इसके पास रेडिकल है, इट वांट्स टू हैव वन मोर रेडिकल फ्रॉम दिस साइड. तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, होमोलिटिक फिशन होगा तो ये जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. तो इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ इंटरैक्शन. सो बॉन्डिंग ऐसी हो जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे रेडिकल बनाएगा. सो ये रेडिकल जो ये चेन को इनिशिएट कर गया, अब ये प्रोपेगेट करेगा चेन. दैट विल बी द सेकंड स्टेप. सो स्टेप नंबर 2 इज चेन प्रोपेगेशन. अब आपके पास पहले ये बना,
अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथीन पे अटैक करेगा, फिर से वही होगा। क्या मतलब, ये फिर से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। तो व्हाट हैपेंड, दिस रेडिकल कंबाइंस विद दिस रेडिकल टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ऐसे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। ये फिर से दूसरे अटैक करेगा दूसरे रेडिकल पे, तो ऐसे बनेगा। दूसरे अल्कीन पे अटैक करेगा, मतलब इथिन पे अटैक करेगा, तो ये फिर से यहाँ पे जो है ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। दिस रेडिकल कंबाइंस विद दिस रेडिकल टू प्रोपेगेट द चेन। सो चेन कंटिन्यूअसली प्रोपेगेट करती जा रही है। इन दो के बदले मैं लिखूंगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल n कर दूंगा मैं। अब सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल कर दूंगा। तो इस यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए इथिन के, तो ये होल n मैंने लिखा यहाँ बहुत सारे, तो CH रेडिकल। अब नंबर थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। अब चेन को टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करने के लिए क्या होगा, या तो यही बेंजाइल रेडिकल आएगा जो ऑलरेडी बना था, बेंजाइल रेडिकल 2 बनेंगे यहाँ, या तो यही आएगा चेन टर्मिनेट करने के लिए, या फिर जो है यही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके आपका जो है पॉलीथीन बनेगा। कैसे, आपके पास है ऐसे, सो यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, होल एंड CH2, ये 2 टाइम कंबाइन होगा तो वो आपस में मिलेंगे, तो ये बनेगा आपका CH2 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 होल एंड CH2, यहां से आपका बेंजीन रिंग। मतलब ये जो है दिस इज योर पॉलीथीन। बेंजीन टर्मिनल पे अटैच है, तो बीच में जो है CH2 ग्रुप्स कंटिन्यूअसली अटैच्ड है टू ईच अदर, सो इट इज द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। अगर इंस्टेड ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड आपने सिंपली अल्काइल पेरोक्साइड लिया होता, तो ये बनता है यहाँ पे R, यहाँ बनता है यहाँ पे R, सो मिथाइल बनता है यहाँ पे, दिस विल बी द पॉलीथीन। दिस इज हाउ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस। आपके 3 स्टेप याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन, विच इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली बेंजोइल पेरोक्साइड की, तो ये बना। उसके बाद ये प्रोपगेट करे, चेन को इनिशिएट करेगा पहले, ये बना। उसके बाद प्रोपगेशन होगा, सो चेन प्रोपगेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। अब चेन टर्मिनेट करना है, या तो ये बेंजाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, या तो खुद के साथ कंबाइन होके ये लॉन्ग चेन बनाएगा बीच में, दिस गिव्स यू अ पॉलीमराइज, दैट्स कॉल्ड एज पॉलीथीन। नेक्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास है, दैट इज नंबर सेकेंड मैकेनिज्म इज, अगर फ्री रेडिकल नहीं बनता या फिर आपको आयनिक मैकेनिज्म चाहिए, सो वी हैव हियर आयनिक और पोलर मैकेनिज्म। In this mechanism, what is used as the reaction is catalyzed by, reaction is catalyzed by Lewis acids or bases. Lewis acids or bases, Lewis acids और Lewis bases से जो है रिएक्शन कैटलाइज होती है। कैसे, आपके पास 3 स्टेप अगेन है। नंबर फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। ये एसिड कौन कौन से हैं, एसिड्स कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड कैन बी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, acid can be BF3 also, so yeah, HCl also. So these are the acids which can propagate the or chain, initiate the chain. So we have chain initiation. First step, आपके पास है suppose sulfuric acid H2SO4, this gives you HSO4 minus and H plus because this is acidic in nature. ये जो H plus है, this H plus combines with first molecule of ethene to form, जब ये प्लस है इट रिक्वायर्स माइनस, सो यहाँ पे ये ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हेटेरोलिटिक फिशन होगा। दिस विल नॉट बी नाउ होमोलिटिक, इट इज हेटेरोलिटिक फिशन। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसी ने ले लिए इस कार्बन ने, तो ये माइनस ये प्लस बनेगा। दिस माइनस कंबाइंस विद दिस प्लस टू फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, दिस इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। अब चेन इनिशिएट हो गई, अब ये कंटिन्यूअसली प्रोपगेट करेगी चेन को। कैसे, नंबर 2 is chain propagation. अब चेन को प्रोपगेट करने वाला कौन आएगा, ये आएगा जो यहां पे बना, दैट इज द कार्बोकेटाइन CH3 CH2 plus. This combines with the next molecule of ethene to form, ये फिर से यहां पे ब्रेक होगा, this will again break over here, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, so प्लस माइनस इज द पोलर मैकेनिज्म, you understand it. So ये प्लस इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला, फिर ये वाला CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये फिर से कंबाइन होगा विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। मैं यहां पे लिखूंगा ये, आई राइट इन द नेक्स्ट पेज।
सो आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, दिस कंबाइंस विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ से माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, दिस माइनस कंबाइंस विद दिस प्लस टू फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड। ये CH2 में ऐसे लिखूंगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, और यहाँ पे CH2 प्लस बनेगा फिर से। ये प्लस जो अब चेन को प्रोपागेट हो गई, ये चेन ये n टाइम्स बन गया, यहाँ मैंने n टाइम्स इस्तेमाल किया यहाँ अब। So this becomes n times carbocation. Now the point is how you terminate the chain. So number third step is chain termination. Chain termination step में या तो ये combine होगा ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको CH2 प्लस, इसमें एक CH2 मैंने यहां डाल दिया तो CH2 प्लस बन गया। अब क्या होगा कि आपके पास HSO4 ऑलरेडी अवेलेबल है जो पहले बना था, आप देखेंगे HSO4 यहाँ HSO4 माइनस बना। ये जो HSO4 है what it does, it takes hydrogen from this carbon, यहां से CH2 है ये, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं CH सिंगल बॉन्ड H, तो CH2 था CH सिंगल बॉन्ड H मैंने लिखा, ये H इसने खा लिया, बन गया वापस सल्फ्यूरिक एसिड, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यही डाल दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगी, H will be released as H plus that combines with HSO4 minus to form sulfuric acid back. So you are having CH3, CH2 whole N, CH double bond CH2 and plus sulfuric acid. ये जो CH2 ये जो है, this is called polythene. Do not confuse with methyl over here. Do not confuse with ethene over here. These are the two things at the terminal. And बीच में जो है, बीच में n times आपको monomeric unit मौजूद है. So this is called as polythene. This is called as polythene. This is called as polythene. I hope you understand it. इस तरीके से जो है आपकी पॉलीमराइजेशन होती है, चाहे आप रेडिकल मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इस्तेमाल करेंगे आयनिक और पोलर मैकेनिज्म, दोनों सूरतों में आपका पॉलीमर बनता है। तो दैट इज द पॉलीथीन की एग्जांपल मैंने यहां पे ली है। दिस इज हाउ एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है काम करती है, और इस तरीके से आपके पॉलीमर्स बनते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं, सपोज हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट एडिशन पॉलीमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि देयर मस्ट बी मोनोमेरिक यूनिट मस्ट कंटेन अनसैचुरेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो तब आपका जो है एडिशन पॉलीमर बनेगा, और इसमें कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है। इसमें जो है ये हम कैटलाइज कराते हैं या तो फिर रेडिकल से या तो फिर लिविस एसिड्स और लिविस बेसिस से। ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, कितने इसमें आते हैं, पॉलीथीन आता है, पॉलीप्रोपाइलीन आता है, पीवीसी आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, या फिर ऑर्लॉन आता है, टेफ्लॉन आता है, स्टाइरीन आता है। ये सारे जो पॉलीमर्स हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज पॉलीमर्स होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो वन बाय वन along with uses and properties. Till then, take good care of yourselves, and अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe it and share it to all your colleagues and friends. Thank you very much.